Yeah. Okay. Hello, everyone, and good evening to all of you. Myself, Dr. Priya, with my team, Dr. Mukesh Kumar Srivastava, Vineet Kumar Saxena, and Dr. Nimisha Kapoor, on the behalf of Institute of Management Sciences, Department of Economics, and Population Research Center, welcome you all in the special COVID awareness interactive lecture on COVID challenges, problem, medication, and post-COVID care. After COVID-19 infection, most people form adequate antibodies which prevent them from contracting the virus again. Although it's an unknown territory for the medical practitioner across the world as to how long can that immunity stand. Cases where patients had the novel coronavirus again have been reported in too. More in this way, for individuals who are at high risk of reinfection are either the old age or the person who are do not take enough for preventive measures to additionally protect their immune system, which makes post-COVID care important for them. Uh, while the standard law of staying safe suggests everyone to cover their face mask with a mask, um, wash hand regularly, and protect social distancing, a reminder of how to keep with your well-being does not cause any harm. In dealing with coronavirus, it is not only enough to take preventive measures to deal with this particular disease, but also to know what are the challenges, what are the problems, and how the medication helps in this disease, and also the post-COVID care. Today, we have a very eminent speaker with us. It is my pleasure to introduce our guest, Professor Ved Prakash, Head of Department, Super Specialty, Pulmonary and Critical Care Medicine, King George Medical University, Lucknow. Sir has completed his MBBS from KGMU in 2002 and MD in 2007. He joined PGI in Critical Care Department and in 2010 joined KGMU Preliminary Medicine Department. Dr. Prakash has been running the respiratory ICU for the past over a year and handled some of the very critical cases successfully. He also worked for Cleveland Sleep Center, USA. He had been a part of lots of conferences and workshops, scientific and clinical effort of yoga. Spirometry technician workshop are the remarkable of them. He was also awarded for the outstanding administrative work. He is a member of advisory committee as a nominee from the state health department. Um, he and his department will contribute a tremendous effort and services to the public and to the general government in this pandemic. So now, before I would request to the OSD sir to welcome our guests, I would like to say all the participants, please pay attention. Kindly mute your mic in the whole session. And if you have any query and would you like to ask anything, any question regarding this pandemic, regarding the post-COVID care to the sir, please write on the chat box. We will discuss on our question answer session. So now I would like to request our respected OSD sir, please welcome our guest, Professor Ved Prakash sir. Yeah. Thank you, Dr. Priya. It is really a great pleasure to welcome Professor Ved Prakash ji. And he is a renowned expert in his field. You talk anywhere around UP or India, he is well known. And I know that he also suffered from COVID just few days back, but still he is with us. So we welcome especially for this, brave heart. And this shows that how a doctor's life, committed doctor's life is, that they can't take rest. They advise us rest. When I talk to him, he advises me rest, but he's not taking rest. So it is really a commitment to the public. And this is the spirit that keeps the India moving. And many things he will learn while he is speaking. And I would also like to welcome all the participants. And Dr. Can you imagine the type of incidents that has happened? We conducted a survey at our institute, IMS, that has a capacity of 1,300. And we are having a postgraduate MBA programs as well as undergraduate.
BBA programs. And our institute is 25 years old. We are quite prestigious institute and a flagship institute of University of Lucknow. And our placement rate is quite high. When I was in a public health institute 1.5 years back, where Master of Public Health was there, so there also placement was there. Very high rate of placement is there. So in our institute, what I wanted to communicate to you that around 627 students responded. Out of that, 1/3 of the students were either themselves infected or their family members were infected. We just conducted this survey 2 days back to provide you feedback, the real feedback. So this is the type of situation, horrible situation. But Indians are quite braveheart, and given the type of, support, kind words, even I was admitted to KGMU for a few days last month, and the type of sincerity and commitment that I found in the, paramedical staff, commendable. So with these words, I welcome you to our Institute of Management Sciences, Department of Economics, and Population Research Center. Welcome each and everyone, my faculty members, staff members, students, and all others. Dr. Priya. Thank you so much, sir. Now I would like to request our guest speaker, Dr. Ved Prakash, sir. So please proceed the meeting. You can be bilingual, sir, or whatever language. Thank you. Know that you have a good command over Hindi. बिल्कुल हम सब सुनना चाहेंगे. Thank you, sir, for introduction. और कुछ ज़्यादा जोरदार इंट्रोडक्शन दे दिया प्रिया जी ने. नहीं है, मैं आपके बीच से ही हूँ और मैं भी एक स्टूडेंट की तरह ही KGMU में आया था. ज़्यादा दिन की बात नहीं है. It is 24 years now. और उस समय KGNC आपके LU का ही Hey, I forgot to introduce that you have just joined for this lecture to your mother university. So this is मदर यूनिवर्सिटी और जो मेरी डिग्री है MBBS की वो आप ही के वहाँ की है. MD वाली हमारी KGMU की और फर्दर स्टडीज तो बताया जिस तरह से PGI फिर USA फिर सब करके फिर हम लोग घूम के यहीं आ गए. तो यहीं पे आपके बीच है. Thank you, Professor M.K. Agarwal, sir, for the opportunity you have given to interact with the wonderful students and faculty members of Public Health Center of Lucknow University. The center is known for its excellence in the field, and so many stalwarts are from the institute itself. So ये जो आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं वो जगह जगह पे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो आपके इंस्टीट्यूट के फ्लैग को और ऊंचा करने का काम कर रहे हैं. और मैं जो स्टूडेंट्स हैं इसी तरह का स्टूडेंट मैं भी आपके LU का रहा हूँ. जहाँ तक ये पेंडेमिक है हम लोगों के लिए ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है. शायद ऐसा हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था जैसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हम लोग फेस कर रहे हैं. और जीवन काल में शायद एक बार ही शायद इस तरह का मौका मिलता है जिस तरह की सिचुएशन को हम लोग फेस कर रहे हैं. 10 साल पहले लगभग ये स्पेनिश फ्लू एक बड़ी तबाही लेकर के आया था. एयरबॉर्न था, सेम टाइप के वायरसेस और एयरबॉर्न इन्फेक्शंस की जद में ये पूरी दुनिया में 5 करोड़ लगभग मौतें हुई थी उस समय. ये पैंडेमिक भी एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज लेकर के आई है. आप सब जानते हैं कि ये नवंबर दिसंबर 2019 में वुहान में ये निमोनिया आ रहा था सामने और
WHO और ये एजेंसीज वाज वर्किंग ऑन इट, और एक ऐसा ये पाया कि ये बैक्टीरियल नहीं है, ये फंगल नहीं है, ये वायरल है। वायरल इलनेस के साथ में जो वायरल निमोनिया जो डेवलप हो रहा था, ये एक नई तरह की नई किस्म का निमोनिया था। हालांकि कई तरह के वायरसेस सामने आए हैं इस RNA फैमिली के भी, पहले भी H1N1 में भी निमोनिया डेवलप होता है, अन्य कई तरह के वायरस हैं जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, और उनमें भी ये होता है। जितने रेस्पिरेटरी वायरसेस काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, और RNA वायरसेस की सबसे बड़ा जो चैलेंज हम लोगों के बीच में होता है वो होता है इनके म्यूटेशंस। और आपके घर में यदि कोई रेस्पिरेटरी डिजीजेज या कोमॉर्बिडिटी के साथ में होंगे तो वो जानते होंगे कि इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन हर साल होता है। इसीलिए होता है कि नए स्ट्रेन आते हैं और नई तरह से, और जो इम्यूनिटी है वो भी लगभग 1 साल के लिए ही हो पाती है जो भी हम लोग वैक्सीनेशन देते हैं। तो जिस तरह से फर्स्ट वेव हम लोगों के यहाँ पे आई, तो हम लोगों के लिए अच्छा ये था कि हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे थे दुनिया से, लगभग 2-3 महीने बाद में हम लोगों के यहाँ पे आई, 3 महीने 4 महीने का गैप था। और हम लोगों ने दुनिया की गलतियों से भी सीखा, अन्य देशों की गलतियों से भी सीखा, और जो ट्रेंड थे और जो डाटा लिमिटेड था, उस लिमिटेड डाटा में जब स्टडीज आगे बढ़ती गई तो हम लोगों के लिए गाइडिंग फोर्स की तरह से वो सामने आया भी, और काम हम लोगों ने स्ट्रेटजी रखी, उसमें काफ़ी बड़ा रोल उसका रहा। किस प्रकार से ये जो वायरस है RNA वायरस, ये कैसे फैल रहा है, वुहान से चल करके जब ये वहाँ के जो माइग्रेंट्स हैं पॉपुलेशन, या जो लोग वहाँ से होकर आ रहे थे, दुनिया भर में ये वायरस उनके साथ गया, और सब जगह से फिर अन्य कंट्रीज में, फिर वहाँ से यहाँ डायरेक्ट चाइना से हमारे यहाँ नहीं आया, हम लोगों के पास कहीं दूसरे कंट्री से आया। दूसरा एक यहाँ पे ग्रुप था जो यहाँ पे घूमने के लिए आया हुआ था, वहाँ पे उनके साथ में हुआ। तो पहले क्या था कि हम लोग ट्रेस कर पाते थे कि ये वायरस से ये इन्फेक्टेड है, और फिर उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करते थे। कांटेक्ट ट्रेसिंग पे पता चलता था कौन कौन लोग इसमें और हैं इन्वॉल्व, कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, इससे फिर उनकी चेन बनती थी। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे कि पहली बार में हम लोगों की कोई तैयारी भी नहीं थी बहुत खास, और देश में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ से पहली बार जो सैंपल गए थे आगरा से, वो पुणे गए थे, और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी उत्तर प्रदेश में। और जो एडमिशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था उन पेशेंट्स का। इसके बाद से लगातार ये मार्च अप्रैल के बाद यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग का काम हुआ, यहाँ पे एक बड़ी संख्या में टेस्टिंग हुई। आपको जान करके खुशी होगी कि देश में अगर सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हुई है तो KGM ने की है। KGMC जो आपका हिस्सा रहा है, उसी ने देश भर में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग की। और उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो सबसे बड़ा अगर सेंटर रन हो रहा है तो KGM में ही हो रहा है। ये विषय इसलिए आवश्यक है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग कर नहीं सकते, हम लोगों ने अभावों में भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है देश के लोगों ने, और उसमें सबकी सहभागिता रही है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो दुनिया का 5वां 6वां देश बनता है, और एक बड़ी पॉपुलेशन, उन्होंने ऐसा जिम्मेदारी का एक अपना परिचय दिया, और लोगों ने अनुपालन किया। लॉकडाउन के बाद अनलॉक, और जहां कैपेसिटी नहीं थी वो कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम हुआ लॉकडाउन में, और जो स्प्रेड था जिस तरह से हो सकता था उसे रोकने का काम भी हुआ लॉकडाउन। लेकिन लॉकडाउन की दुश्वारियां भी आप सबने देखी हैं, किस तरह से कितनी दुश्वारियों के साथ हमारे लोगों ने इसमें माइग्रेंट लेबरर का जो सबसे बड़ा इश्यू सामने आया, किस तरह से लोग घर पहुंचे। तो ये जो हम लोग बेपरवाह हो गए बाद में बीच में, वो इसलिए हो गए कि अनलॉक हो गया, सब सारी सुविधाएं ओपन हो गई, सारे मॉल्स भी ओपन हो गए, सारे आपके जो पिक्चर हॉल्स हैं वहां तक सब कुछ ओपन हो गया। तो ये लगने लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है और हम लोग नॉर्मल जिंदगी पे आ गए,
और हम लोगों ने प्रिकॉशंस लेने कम कर दिए, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। इस वजह से ये एक चैलेंज बड़ा हमारे सामने आ गया कि ये स्प्रेड बहुत ज़्यादा हुआ। इसके जो एग्रीगेशंस हैं, कई बार जो लोग कहीं सम्मेलन हुए, कहीं इकट्ठे हुए, कई तरह की इसमें बातें की जा सकती हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में हैंड हाइजीन है। आप सब जानते हैं कि किस तरह से हाथ धोना है, बार बार धोना है, साबुन से धोना है, और यदि आप धो नहीं सकते हैं तो एक सैनिटाइजर जरूर आप अपने पास रखें, तो बार बार सैनिटाइज करते रहें। तो ये हैंड हाइजीन है। इसके बाद ये भी है कि बार बार नाक से मुंह से टच नहीं करें, क्योंकि जिस सरफेस पे हाथ आपका जाएगा उस सरफेस पे अगर वायरस है तो वो आपके नाक से मुंह से आ सकता है। जो एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट्स हैं वो यही हैं, नाक और मुंह मेनली। तो यहाँ से एंटर होता है और यहीं से वो स्प्रेड करता है सबको। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सब लोग इस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन करें, जिसमें हैंड हाइजीन, 2 गज की दूरी, मास्क और रेस्पिरेटरी हाइजीन। और जहाँ पे आप लोगों को नहीं जाना चाहिए वहाँ बिल्कुल मत जाइए। अगर आपको काम ऐसे चल सकता है दूर से, फ़ोन से या किसी तरह से, तो मिलना नहीं है बिल्कुल भी। और यदि मिलना भी है तो वो आपको ओपन में मिलना है, खुली हवा में मिलना है, दूरी के साथ। अगर वहाँ संभव नहीं हो पा रहा है, कमरे में मिलना है, तो जरूर ध्यान रखें कि वहाँ पे पंखा चलता हो, खिड़की दरवाजे खुले हों। यदि एसी में मिलना है तो कहीं एग्जॉस्ट चलता रहे, जिससे कि जो मीडियम है वो मूव करता रहे। क्योंकि जो स्प्रेड है वो कैसे है, अब मैं आपको इस पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि स्प्रेड इसकी वायरस की है नेजल कैविटी और गले में। सबसे पहले ये आप जानते हैं कि एरोसॉल जो जनरेट हो रहा है उससे ये यहाँ पे आ रहा है, या तो सरफेस पे जा रहा है या एयर में सस्पेंडेड रहने की वजह से। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जहाँ ज्यादा ह्यूमिड कंडीशन है और मीडियम मूव नहीं कर रहा है, उस जगह पे सबसे ज्यादा खतरा है। बंद जगह में जहाँ लोग मिल रहे हैं और जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जहाँ ज्यादा लोग रहते हैं वहाँ सांस की जो ह्यूमिडिटी है वो काफी हो जाती है। छोटे कमरे में अगर ज्यादा लोग हों और ह्यूमिड भी हो, ह्यूमिडिटी को एड ऑन भी करते हैं ये लोग। और वहां पे ये जो आपके एरोसॉल निकल रहा है, एरोसॉल क्या होता है कि सॉल्यूशन सस्पेंडेड इन एयर। एरोसॉल जो हमारा सॉल्यूशन, जब हम बोल रहे हैं, छींक रहे हैं, खांस रहे हैं या जोर से बोल रहे हैं, गा रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जो वाइब्रेशंस और इनके साथ में हमारे जो एरोसॉल है या माइक्रो ड्रॉपलेट्स हैं, उससे भी आगे का है एरोसॉल। ये सस्पेंडेड रहता है एयर में, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका एरोसॉल आप तक आ गया और आपने उसको अंदर रेस्पिरेशन के माध्यम से अगर इनहेल कर लिया तो वो आपके नेजल या गले पर सबसे पहले वहां पे आ जाएगा। इसके बाद और सीधे लंग्स में भी जा सकता है, अगर सीधे आप उसको एरोसॉल के माध्यम से जा रहा है। और जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सरफेस पे भी जमा हो सकती हैं, जहाँ पे कोई इन्फेक्टेड पर्सन वहां पे रहा है, वहां बैठा है। तो जहां हाथ लगाया आपने, फिर आप अगर मुंह की तरफ ले गए हाथ को, तो फिर आपको ये एक तरह से आपकी जो सरफेस है जहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन बैठ करके गया है, भले ही वो अभी नहीं है, लेकिन वहां पे हाथ लगाया आपने, फिर अगर बिना सैनिटाइज किए, बिना धुले अगर नाक और मुंह से हाथ लगाया तो वो ट्रांसमिट हो सकता है। अब जब ट्रांसमिट हो रहा है, इसके बाद नेजल और गले में होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, ये लगभग 5-6 घंटे तक का समय होता है जब ये सरफेस पे रहता है सेल के और अंदर जाता है सेल। तो इसके ऊपर आपने देखा होगा ना इसका किस तरह का, इसका जो फोटो, तो उसमें कई सारे स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, स्पाइक होती हैं, और वो जो रिसेप्टर्स हैं सेल के ऊपर उस पर स्टिक करते हैं और फिर वो अंदर चला जाता है। और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद में फिर वो ट्रांसपोर्टिन प्रोटीन से ये जो अपना रिलीज करता है साइटोप्लाज्म में अपने आरएनए मटेरियल को,
फिर वो ट्रांसपोर्टिन के माध्यम से अंदर चला जाता है इसमें आपके न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में डीएनए से फिर ये कॉपी बनाता है, करोड़ों करोड़ कॉपी अपनी जनरेट करता है, और आप ही के मीडियम को यूज करके आप ही के खिलाफ ये काम करना शुरू कर देता है। अब सिम्टम्स आ गए सब। कैसे? अगर नाक में आया है, गले में आया है, तो क्या होगा? जुकाम हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, फीवर आ सकता है, क्योंकि इतने सारे रिलीज हो रहे हैं। साथ ही साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज होते हैं, आप इतना सब जानते हैं। तो ये एक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स बॉडी में जनरेट होता है, जिसकी वजह से फीवर, वीकनेस, या फिर सबसे ज्यादा है इसमें रेस्पिरेटरी, और उसके बाद है जीआई सिस्टम, उल्टी दस्त, सांस, बाद में लेटर स्टेज में सांस फूलना और अनकॉन्शियस होना या ऑक्सीजन का स्तर गिरना, ये बाद के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो जितनी सिम्टोमेटोलॉजी है वो लगभग इससे क्लियर हो जाएगी कि कहाँ पे जाता है, कहाँ से इसका कोर्स ऑफ जो इलनेस है वो कैसे कैसे होता है। उस पैथोफिजियोलॉजी को अगर हम लोग देखेंगे तो ये सबको क्लियर हो जाएगा। तो ये सिम्टम्स हुए इसके। अब सिम्टम्स आने में और इन्फेक्शन कांटेक्ट होने में कितना समय लगता है, कितना इंक्यूबेशन पीरियड है उसका। तो अगर हम देखें कि जब इन्फेक्शन आपको मिला, उससे 2 से 5 दिन में आपको फीवर आ जाएगा। माने जिस दिन फीवर आता है आपको, उस समय सबसे ज्यादा संख्या होती है वायरस की बॉडी में, जो वायरल लोड जिसको हम लोग कहते हैं। वो वायरल लोड सबसे ज्यादा कब होता है? जब पहला फीवर आता है, क्योंकि वो फिर बॉडी का रेस्पॉन्स आने लगता है, और फिर ये संघर्ष चलता है हमारे इम्यून सिस्टम में और वायरस के बीच, और अगले 2-3-4 दिन में वायरस को बॉडी खत्म कर देती है। फिर क्या होता है कि जो हमारा फीवर और इन्फ्लेमेशन है, इसको अगर हम लोग डिवाइड करें, इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको, तो हमारा पहला सप्ताह, दूसरा और 3 सप्ताह की अगर बात करें, तो फर्स्ट वीक है वायरीमिया या वायरस के रेप्लिकेशन का फेज। इसमें वायरस जो एंटर होने से लेकर के समाप्त होने तक, ये पहले वीक में लगभग हो जाता है पूरा। दूसरा वीक है कि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स जो आ रहा है बॉडी में, वायरस तो खत्म हो गया, लेकिन जो हाइपर इम्यूनिटी, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, वो जब हाइपर एक्टिव हो गया, जब उसके इतने सारे साइटोकाइंस रिलीज हो गए, मीडिएटर्स, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, तो क्या होता है? ये साइटोकाइन स्टॉर्म, आपने सुना होगा आजकल टर्म बहुत यूज हो रहा है, साइटोकाइन स्टॉर्म। तो जो साइटोकाइंस है, उनकी इतनी बड़ी तादाद में निकलते हैं वो, कि पूरे सिस्टम को बिल्कुल स्टॉर्म की तरह ले लेते हैं। और साइटोकाइन स्टॉर्म ये जब आता है तो पूरी बॉडी में स्वेलिंग, जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें, वहाँ की जो एंडोथीलियम है उससे इंटरेक्ट करके उसको रफ बना देता है, वहां से इंटरेक्ट करता है, और जो कुछ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स में सिमिलर टाइप की जो स्पाइक्स हैं, वहां पे जो हमारी एंटीबॉडीज हैं वहां पे भी अटैक करती हैं। तो हमारी जो इम्यूनिटी है वही हमारी सेल्स के खिलाफ भी काम करना शुरू कर देती है, और इसके बाद फिर जो प्लेटलेट्स हैं उन पे वो पूरा चिपक जाते हैं, क्लम्प बन जाते हैं, और एंडोथीलियम से चिपकते हैं पहले, फिर ये आगे जा करके फंसना शुरू कर देते हैं। तो ये पूरी बॉडी में है, ये सिस्टेमिक रेस्पॉन्स है, पूरी बॉडी में है। लेकिन लंग्स चूंकि इंटरफेस बहुत पतला है, वहां पे आप देखेंगे कि एयर स्पेस एल्वियोलाई है, और उसके पास में आपकी जो ब्लड की जो कैपिलरीज हैं वो हैं, और कैपिलरीज में इतना होता है कि वो सिंगल सेल ही निकल सकती हैं, इतनी बारीक कैपिलरीज होती हैं जो ऑक्सीजनेशन के लिए वहां पे से निकलती हैं लंग्स में से। तो वहां पे ये फंसने लगते हैं और वहां पे ऊजिंग होने लगती है, और जो एयर स्पेस है, एयर स्पेस के बीच और ये जो ब्लड वेसल है, इन दोनों के बीच में स्वेलिंग आ जाती है। तो ये जो स्वेलिंग वहां पे आ रही है, इससे क्या हो रहा है कि जो एयर स्पेस है एक तरफ, और दूसरी तरफ ऊपर से ब्लड वेसल्स हैं, उनके बीच में एक गैप आ गया उस फ्लूइड को आने की वजह से। उसी को हम लोग ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया कहते हैं। और जब ये
अप्रोक्सीमेट रहता है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है डिफ्यूजन के माध्यम से वो अच्छे से हो पाता है, और अगर इनमें डिफरेंस दूरी हो जाती है तो ये वहां पे हैम्पर हो जाता है। तो इससे ऑक्सीजनेशन जो ब्लड का है वो हैम्पर हो जाता है। यही है निमोनिया, जो ऑर्गेनाइज्ड निमोनिया इससे हो रहा है, और जो बड़ा कॉम्प्लिकेशन है लंग्स का, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लंग्स में तो पहुंच रही है, लेकिन लंग्स से जो डिफ्यूजन होना चाहिए और जो सर्कुलेशन में आनी चाहिए ब्लड में, वहां पे डिफेक्ट है। ये डिफेक्ट हमारा है दूसरे सप्ताह का। और फिर थर्ड वीक अगर हम कहें तो ये है फिर थ्रोम्बो इन्फ्लेमेटरी फेज, और जो सेकेंड वीक की बात हो रही थी वो रहा इम्यूनो इन्फ्लेमेटरी। अगर हम लोग इस रेस्पॉन्स की बात करें तो पहला वीक वायरीमिया, तो अब आप इसका प्लान कर सकते हैं ट्रीटमेंट का साथ ही साथ। अब आप समझ सकते हैं पूरी तरह से कि जो वायरीमिया फेज है तो एंटीवायरल्स कहाँ पे देने हैं, वायरीमिया फेज में देना है। अगर एंटीवायरल की हम बात करें जिसमें हमारे बहुत आसान हैं, जैसे आइवरमेक्टिन है, जैसे हमारे फेविफ्लू आपने सुना होगा, जैसे रेमडेसिविर है, कि जितने भी हमारे एंटी वायरल्स हैं इनका जो यूज है वो अर्ली फेज में है, माने पहले में। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब हम लोग दूसरे वीक में पहुंच जाते हैं तभी तो एडमिट होते हैं। फीवर पे कौन एडमिट होता है, आप बताइए कितने लोग एडमिट होते हैं? फीवर पे तो कोई नहीं होता, लेकिन जब सांस फूलने लगती है तब एडमिट होते हैं। और वो फेज कौन सी है, वो है इम्यूनो इन्फ्लेमेटरी फेज। और तब आप अस्पताल में पहुंचते हैं, तब आपको रेमडेसिविर या फेविफ्लू ये चलाए जा रहे हैं, तो इसका कोई यूज नहीं है वहां पे। इसका यूज सिर्फ यहाँ है वायरीमिया फेज में, जितनी जल्दी आप देते हैं। सेकेंड वीक माने मैं कहूँगा 5वें दिन के बाद अगर ये कंटिन्यू कर रहे हैं, सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, तो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, जैसे बचाव की बात हुई कि कैसे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपने आप को रखना है, इसके बाद आपने इस बीमारी को समझा थोड़ा सा, और फिर हम लोग फेज वाइज ट्रीटमेंट की बात, क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं सब लोग, क्योंकि सबका जुड़ना जरूरी है, क्योंकि जो फैसिलिटी है हमारी वो कम है और पेशेंट्स ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं। तो ऐसे में उस बीमारी को समझ करके घरों पे ही इलाज हो रहा है बड़ी संख्या में, और घरों पे लोग ठीक हो रहे हैं। तो पहले फेज में जो दवाइयां हैं आइवरमेक्टिन, फेविफ्लू या फिर रेमडेसिविर, और इसके साथ साथ जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली चीजें हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, ये इनका हम लोग यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ एटिपिकल पे एंटीबायोटिक्स हैं जो एटिपिकल्स पे वर्क करती हैं, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, इनको ले सकते हैं। और बुखार की गोली पैरासीटामोल 650 mg ओवर द काउंटर है, इसको यूज कर सकते हैं। और जिसको भी अगर हो जाए बुखार, तो अब ये स्थिति है, पेंडेमिक चल रही है, तो इस समय के जो बुखार हैं आप उसको कोविड ही मानिए जब तक कि वो प्रूव ना हो जाए कि कोविड नहीं है। और सबसे पहला काम करिए ट्रीट एंड टेस्ट। हम लोग टेस्ट का इंतजार ना करें, ट्रीटमेंट पहले शुरू करें। ट्रीटमेंट शुरू कर दें और टेस्ट कराते रहें। इस स्ट्रेटजी पे आगे बढ़ना चाहिए पहले सप्ताह। तो ये जो दवाइयां हैं मैंने बताई, ये आपको कई माध्यम से मिली होंगी, ज्यादातर लोग इन दवाइयों के बारे में जान गए। इसके बाद जब फर्दर इसके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जो प्रोग्रेस करती है बीमारी, वो फिर आगे जा रही है कहाँ पे, आगे कॉम्प्लिकेशन आ रहा है लंग्स में, निमोनिया जो सबसे ज्यादा आपने सुना होगा, और इसके बाद सुना होगा आपने क्लॉटिंग। ये दो बातें आप लोगों ने सबसे ज्यादा आजकल सुनने को मिल रही है। तो यदि आपकी वायरस जब खत्म हो गया, इसके बाद कॉम्प्लिकेशन, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन इसके शुरू होते हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि जो मैंने पहला बताया, एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड, ये कैटेगरी के लोग यहाँ तक हैं जिनमें फीवर 100 तक हैं, जिनमें आपकी वीकनेस है, जिनमें अन्य सिम्टम है, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन डिप नहीं हो रहा है, तो ये माइल्ड में है, माइल्ड कैटेगरी के पेशेंट्स हैं। इनका माइल्ड तरीके से इलाज हो जाएगा, ज्यादातर लोग ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग बचेंगे जो प्रोग्रेस करेंगे, जिनके कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अगर उन कुछ की बात करें हम 5-10% लोगों की, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे जो कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, जिनका आगे जाकर के निमोनिया डेवलप हो रहा है। और निमोनिया मैंने बताया कैसे डेवलप हो रहा है, वो ऑर्गेनाइज कैसे हो रहा है। इस निमोनिया को चूंकि इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स है,
तो हम लोगों को एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें यूज करने होंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी आप सब जानते हैं कि जो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं, सबसे सस्ते भी हैं और सब जगह अवेलेबल भी हैं। माने हम लोग महंगे इलाज की बजाय हम 2 रुपए की गोली, जो जिसे बोलते हैं हम लोग कि भाई हम लोगों ने कहा कि 2 रुपए की गोली, तो अखबारों ने खूब लिखा कि 2 रुपए की गोली से इलाज हो रहा है। तो ये 2 रुपए की गोली है जिसको डेक्सामेथासोन या फिर मेड्रॉल, मेथाइलप्रेडनिसोलोन या खाली प्रेडनिसोलोन, ओमनाकॉर्टेल, वाइसलोन, कई नाम से आती हैं। इन दवाइयों का यूज बहुत ज्यादा है इस सेकंड फेज में, कि अगर हमने सही समय पे सही डोज अगर दे दी तो जो ऑक्सीजन के लेवल गिर भी रहे हैं, अगर मॉडरेट की बात करें, माइल्ड केसेस की बात होगी, मॉडरेट की अगर हम बात करें तो जिनका ऑक्सीजन 94 से 90 तक बीच में रह रहा हो, जिनकी हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है 24 से ज्यादा हो, या फिर उनकी सांस फूल रही है, सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, फीवर 101 से ज्यादा है, परसिस्ट कर रहा है, तो ये तमाम बातें ऐसी हैं कि जब हम लोग इस कॉम्प्लिकेशन को झेल रहे हैं, और ये है मॉडरेट केसेस, जब तक कि वो सीवियर नहीं हुआ, कोविड निमोनिया। और अगर हम लोग इसकी बात करें कि जो हमारे सीटी स्कैन अब काफ़ी होने लगा है, तो उसमें भी एक सिस्टम है ग्रेडिंग का, सीवियरिटी स्कोर का। तो उसमें 1 से 8 तक का जो स्कोर है 25 में डिवाइड किया है पूरे लंग्स को, दोनों को, तो 8 तक का है माइल्ड में आएगा, और 8 से जो 19 तक है मॉडरेट है, और उससे ऊपर सीवियर। तो ये उसकी कैटेगरी की हम बात करेंगे। इसमें जो ट्रीटमेंट है, देखिए, एक मैंने कहा कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है शरीर में तो स्टेरॉइड पहले देना है, ऑक्सीजन बाद में ढूंढनी है आपको। स्टेरॉइड की डोज अगर आप देखें, जैसे अगर एडल्ट की हम बात करें, और 16 mg की पहली डोज अगर आपने डेक्सामेथासोन की खिला दी डॉक्टर से बात करके, लेकिन क्योंकि जो इनके जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें शुगर का है, हाइपरटेंशन का है या अल्सर्स का है, इनमें कॉशियस रहना है सभी को। और यदि हमने ये खिला दी दवाई और तब आप निकले ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए, तो पता है 3-4 घंटे में तो मिलेगा नहीं सिलेंडर, फिर आप ढूंढेंगे, लेकिन आपको पता चलेगा बाद में, घर से फोन आएगा कि 3-4 घंटे में बहुत आराम आ गया, माने ऑक्सीजन लेवल जो गिर रहे थे, ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू हो गया। तो इतना अगर सही समय पे हम इसको यूज करें तो ये बहुत चमत्कार करने वाली दवा है। स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिनमें हम बात कर रहे हैं डेक्सामेथासोन, जिनमें हम बात कर रहे हैं मेथाइलप्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोलोन प्ले, तो इन दवाइयों का यूज होना है डॉक्टर की देखरेख में बातचीत करके, लेकिन घर पे भी हो सकता है, सेफ है। इससे शुगर बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और पीपीआई कोई जरूर ले लें साथ में, जो पेंटाप्रोजोल या ओमेप्रोजोल हैं, जिससे कि एसिडिटी या अल्सर्स ना हो, उसका प्रिवेंशन हो जाए। ये इसके बाद कैसे आप पकड़ेंगे इसमें कि हम जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक तो ड्राई हैकिंग कफ शुरू हो जाएगा, खांसी जो अंदर से बिल्कुल, चेस्ट टाइटनेस शुरू हो सकती है, सांस फूलना शुरू हो सकती है, सीटी स्कैन पे धब्बे आ सकते हैं निमोनिया के, वहां पकड़ में आ सकता है, एक्सरे पे आ सकते हैं, या फिर इससे अगर स्ट्रेस, इससे और एक कदम पहले हमें पकड़ना हो तो मैं कहता हूँ 6 मिनट वॉक टेस्ट, आप सबने सुना होगा। 6 मिनट वॉक करना है, ब्रिस्क वॉकिंग, और फिर देखना है कि जो ऑक्सीजन के लेवल है कम तो नहीं हो रहे हैं, या जो हमारी जो सांस है वो इतनी ज्यादा तो नहीं फूल गई कि साथी की नहीं फूली, अगर साथ में कोई जा रहा है तो ब्रिस्क वॉकिंग के साथ में अगर 500 मीटर अगर आप चल लेते हैं 6 मिनट में और सांस नहीं फूली, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि निमोनिया आपको नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो इतना नहीं है कि आपके सिस्टम को कहीं अफेक्ट कर रहा हो या आपकी फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर रहा हो। तो ये एक कदम और पहले का टेस्ट हो गया, स्ट्रेस टेस्ट की तरह से हम लोग इसको उपयोग कर सकते हैं और बहुत साधारण तरीके से कर सकते हैं। तो 500 मीटर या 700 कदम, ये याद रखें। 6 मिनट, 6 मिनट में 500 नीचे है और 700 ऊपर है, माने 6 मिनट में 500 मीटर या 700 कदम अगर हम चल पाते हैं, सांस नहीं फूल रही है, तो निमोनिया नहीं है। यहाँ तक लगभग ये पूरा हो जाता है तय कि नहीं हुआ है। और इसको तो ये हमारे घर का टेस्ट है, तो रोज कर सकते हैं। तो जब से 5 दिन हो जाए बीमारी को, तो 5 दिन बाद से ये टेस्ट शुरू हो जाए जो चल पा रहे हैं उनके लिए,
जो नहीं चल फिर पा रहे हैं उनकी बात यह है कि उनको आप ऑक्सीजन का लेवल देख सकते हैं, SpO2 देख सकते हैं, वो कम हो रहा है तो अलार्मिंग है, सांस फूल रही है बैठे बैठे तो अलार्मिंग है, बेहोशी आ रही है तो अलार्मिंग है, या फिर नीले पड़ रहे हैं हाथ पैर कहीं उंगलियां तो बहुत अलार्मिंग है। तो ये जो आपने साथ ही साथ टेस्ट भी किया, इसको आपने देखा भी कि किस तरह से हम असेसमेंट कर सकते हैं। माने अर्ली एंड एग्रेसिव ट्रीटमेंट, उसमें क्या करना है, सबसे पहले आइसोलेट कर देना है घर में, खूब सारे फ्लूइड्स देने हैं, इसके बाद ये दवाइयां हैं, पहले ही दिन जिस दिन बुखार आए शुरू कर दीजिए दवाइयां जो हमने बताई अभी। इसके बाद 5 दिन तक आप देखिए, 5 दिन में या तो 101 बना हुआ है लगातार बुखार, तब भी आपको स्टार्ट करनी पड़ेंगी एंटी इन्फ्लेमेटरी, या आपका जो मैंने बताए इनमें से कोई सी भी बात आ गई सामने, तो आइडेंटिफाई हो गया कि ये निमोनिया होने लगा, तो उसके लिए हमें प्रिवेंट करना है वहीं पे। तो निमोनिया जब सीवियर हो उससे पहले ही हमें रोकना है इसको, और वो रुकेगा स्टेरॉइड से। तो अगर हम स्टेरॉइड की डोज की बात करें तो एडल्ट के लिए जिनकी 70-80 किलो वजन है उनके लिए 16 mg पहली डोज, इसके बाद 8 mg सुबह शाम, है वो 16 ही लेकिन डिवाइड में 2 सुबह शाम में, तो अगले 3 दिन और, तो ये 4 दिन में हम देख लेंगे कि कम हो गया या ठीक हो गए, आपको लगने लगेगा ठीक हो गए। इसके बाद अगर ठीक होने लगा तो आपको 4 mg सुबह शाम कर देना है फिर अगले 3 दिन के लिए, और फिर हम देख लेंगे कि 3 दिन से तो अब कोई हमें सिम्टम है ही नहीं, तो हम बंद कर सकते हैं। तो ये 7 दिन की दवा हो गई। इसी प्रकार से जो मिथाइल प्रेडनिसोलोन है उसका डेक्सा के साथ इक्विवेलेंस अगर निकालें तो 5 गुनी डोज होनी होती है। अगर हम 16 mg डेक्सा कैलकुलेट हुई है तो 80 mg मिथाइल प्रेडनिसोलोन आएगी उसकी जगह पे। तो अगर डोज एडजस्टमेंट करना हो तो इस तरह से करना होता है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं सेम तरीके से मिथाइल प्रेडनिसोलोन के केस में, कि हम लोग जो आपकी मिथाइल प्रेडनिसोलोन है उसको 80 mg देंगे पहली डोज, इसके बाद 40 mg सुबह शाम अगले 3 दिन के लिए देंगे, फिर असेसमेंट कर लेंगे, डॉक्टर से बात कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि शुगर, ब्लड प्रेशर, अल्सर्स, इन पे जरूर विशेष ध्यान रखें। एक कैटेगरी बहुत सारी निकल के आ रही है जिसको हम लोग प्रिजम्पटिव कोविड कह रहे हैं, या उसके लिए बहुत सारे लोग सवाल भी पूछते रहते हैं। तो जो प्रिजम्पटिव है वो क्यों आया टर्म? प्रिजम्पटिव तब आया जब सारे आपको मिल रहे हैं सिम्टम्स, और इसके बाद CT स्कैन करा रहे हैं तो उसमें भी निमोनिया मिल रहा है, लेकिन RT-PCR टेस्ट लगातार नेगेटिव आ रहा है, या जो हमारा एंटीजन टेस्ट है किट वाला वो भी नेगेटिव आ रहा है। तो इसमें हमें क्या किया कि अब इन मरीजों के साथ ये हुआ कि एक तो जो अस्पताल वाले लोग हैं प्राइवेट वाले, उन्होंने इनको बाहर कर दिया कि आप जाओ। अब वो जहाँ पे फैसिलिटी है कोविड की वो कह रहे हैं कि कोविड नेगेटिव है ये, तो इनको लेंगे नहीं, तो बीच में एम्बुलेंस में घूम रहे थे ये। तो इन लोगों के लिए हम लोगों ने बात की, फिर ये बात रखी सरकार में कि इनके लिए व्यवस्था होगी, क्योंकि कोविड ही है, पॉजिटिव नहीं आ रहा है लेकिन है कोविड, क्योंकि सारे लक्षण कोविड के हैं और मौत भी होने लगी ऐसे लोगों में से कुछ की। तो ये हुआ कि कोविड प्रिजम्पटिव कैटेगरी, माने कोविड फैसिलिटी में ही एक अलग से वार्ड डेडिकेट कर दिया जाएगा, ICU और वार्ड इनके लिए, कि जो कोविड की तरह का ही इलाज होगा, पूरे PP गियर में रह करके वहां पे लोग इलाज करेंगे इनका, और उपचार होगा इनका कोविड की लाइन पर ही। तो इसलिए आपको इंतजार नहीं करना RT-PCR पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ट्रीटमेंट शुरू करना है सबसे पहला, माने अर्ली एंड एग्रेसिव ट्रीटमेंट, और फिर इसके बाद सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में आ गई तमाम बातें जो मैंने बताई, जिनमें 6 मिनट वॉक टेस्ट भी है और जिनमें सारे सिम्टम्स भी हैं निमोनिया के। और अगर यहाँ पे नहीं रुकता है तो अब आगे आपको देखना है अगर वर्सनिंग हो रही है या इम्प्रूव हो रहे हैं। तो अगर हम मोटी मोटी बात करें कि अगर 50,000 लोग इस कैटेगरी में आए पहली वाली में, कि जिनको हमने पहली वाला ट्रीटमेंट दिया, तो लगभग 10% ऐसे बचेंगे, 5,000 मरीज, जिनमें कि हमें मॉडरेट में प्रोग्रेस कर जाएंगे। और मॉडरेट के लिए हमें फिर आपको देना पड़ेगा स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट। इसके बाद आता है थ्रोम्बो इन्फ्लेमेटरी फेज, माने अगर इस पर नहीं रुका तो इन्फ्लेमेशन चलते चलते ऐसा हो जाएगा कि वो
क्लॉट बनने लगेंगे। तो उसके लिए फिर खून पतला करने की दवाइयां हैं, जिसमें कि लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन है, कुछ ओरल रिब्रेक्साबिन और कई सारी दवाइयां ओरल भी हैं उसमें। लेकिन ऐसे मरीजों को फिर हमें एडमिट करने की जरूरत पड़ती है। तो उनकी संख्या लगभग 10% होगी इनकी, माने 50,000 में से 5,000 निकले और 5,000 को हमने स्टेरॉइड अगर दिया तो उनमें से 5 जो कि सबको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता, उनमें से लगभग 500 मरीज निकलेंगे जिन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ऐसी स्टैटिक्स लगभग सामने आ रही हैं जिनमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट लाइन्स हैं और प्रिवेंशन है। और जो चैलेंज है हम सबके सामने वो यही है कि हमारी जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक की अगर आप बात करें तो इसकी शुरुआत होती है, जे शेप कर्व आता है, आप सब जानते हैं कि स्टार्टिंग होगी और सीधे स्टीप करता है और फिर वहाँ पे प्लेट्यू होता है, इसके बाद डाउनफॉल होता है, फिर रिवर्स जे में चला जाता है लगभग। तो इस तरह की जो शेप हैं कर्व के, ये आते हैं। इस बार का और पिछली बार के में फर्क है, आपने देखा होगा पहला स्लो आया था और फिर जल्दी वहां पे मतलब देर तक चला था, लेकिन स्लोली गया था ऊपर और फिर प्लेट्यू होकर नीचे आया। ये वाला जो कर्व है सेकेंड वेव का, आप देखेंगे बहुत स्टीप हाई गया है और एकदम स्टीप ही डाउन होगा। होता क्या है कि जो हमारी जो पेंडेमिक है वो कैसे खत्म होती है, लिमिट कैसे होती है, ये होती है हर्ड इम्यूनिटी। आप लोगों ने सुना होगा हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी क्या है कि जब लगभग जो ससेप्टिबल पॉपुलेशन है हमारी, उस ससेप्टिबल पॉपुलेशन के लगभग 60-70% लोग जब इन्फेक्शन की जद में आ जाते हैं तो वो चेन का प्रोग्रेशन आगे रुक जाता है। इसलिए रुक जाता है कि अगर 3 लोग बैठे हैं एक साथ मिले हुए, उनमें से 2 अगर नेगेटिव हो चुके हैं पॉजिटिव होकर के तो इम्यून हो गए, तो अगर मुझे अगर इन्फेक्शन है भी तो वो लोग कैरी नहीं कर सकते आगे को, तो चेन ब्रेक हो जाती है। तो लगभग 2/3 ससेप्टिबल पॉपुलेशन जब इससे पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो जाती है या हम कहें कि इम्यूनोजेनेसिटी डेवलप हो जाती है, तो वहां पे हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। और इसको अचीव करने के 2 तरीके, पहला तरीका हमारा जो इन्फेक्शन हो रहा है और दूसरा तरीका वैक्सीनेशन। इन दोनों से हम अचीव करते हैं हर्ड इम्यूनिटी। अब जो वैक्सीनेशन हमारा हो रहा है इसको बहुत तेजी से करने की जरूरत है, उसके लिए प्रयास लगातार चल रहे हैं। वैक्सीनेशन सबको कराना है, जब भी मौका मिले तभी कराना है, पहला अवसर मिलने पे ही कराना है। लेकिन दूसरा जो पहला वाला था उसमें क्या हुआ, इन्फेक्शन को कंटेन क्यों करना चाहिए, तब कंटेन करना चाहिए इन्फेक्शन को जब हम लोगों की जो हेल्थ फैसिलिटी है वो कम पड़ने लगे। जैसे आपने कहा कि अभी हमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, किल्लत हो गई कहीं पे मान लीजिए, या फिर हमें हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, तो ये इंडिकेट करते हैं कि अब हम इसको क्लोज डाउन करें, लॉकडाउन करें या कर्फ्यू लगाएं या हम कंटेनमेंट की कार्रवाई करें, जिससे कि जो प्रसार है वो कंट्रोल्ड एक्सपोजर में बदल जाए। कंट्रोल्ड एक्सपोजर जो टर्म है इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल्ड एक्सपोजर इसलिए करते हैं हम लोग कि जिससे कि ये जो तेजी से इसका फैलाव चल रहा है वो रुके और हमारी जो व्यवस्था है वो कम ना पड़े। अदरवाइज जो ये रुकेगा तो है ही नहीं, जब तक ये पूरी तरह से हर्ड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, हर्ड इम्यूनिटी में जब तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक ये ओवर नहीं होगी पेंडेमिक। लेकिन जब हमारी व्यवस्था कम पड़ने लगेगी, मौतें ज्यादा होने लगेंगी, ये हमारे लिए जब कल को आकलन होगा कि जैसे आज हम 100 साल पहले की अगर बात करते हैं तो हम बताते हैं 5 करोड़ लोग मर गए, लेकिन इकोनॉमिक नुकसान कितना हुआ, कितना डिजास्टर था, कितना डिवास्टेटिंग था, बाकी चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन जान जितनी चली गई वो एक सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है मॉर्टलिटी। तो मॉर्टलिटी को कम करना है हर हाल में, और उन्हें बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि हमें बचाना है हाई रिस्क वालों को। हाई रिस्क में कौन से लोग आएंगे, हाई रिस्क में आएंगे हमारे एल्डरली, जो हमारे 60 साल से ऊपर के लोग हैं, या जिनको कोई बीमारियां हैं साथ में, कोमॉर्बिडिटीज। और कोमॉर्बिडिटीज में आपकी हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारियां हैं, लंग्स की बीमारियां हैं, लिवर की हैं, किडनी की हैं, या किसी को कैंसर है जिसका इलाज पहले से चल रहा है, या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है जिस वजह से कोई इलाज चल रहा है। तो ये तमाम तरह के ऐसे हमारे बीच में लोग हैं जो ज्यादा हाई रिस्क के लोग हैं, इनको बचा के रखना है। इसके अतिरिक्त बच्चे हैं छोटे,
6 साल तक के बच्चे हैं, महिलाएं हैं जिनमें प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब लोग हमारे ऐसे हैं जिन्हें बचा के रखना है। इसी को हमने बचा के रखा है अभी तक। पहली वेव में अगर आप देखेंगे तो काफी हद तक ये बच गए क्योंकि ये लोग घरों में थे। इसके बाद जैसे ही ओपन हुए स्कूल से आइए तो ये लोग बाहर आ गए तो नई चेन फॉर्म हो गई खटाखट। तो आपने देखा होगा बच्चों में खूब हो रहा है। बच्चों में अगर हुआ किसी स्कूल से आउटब्रेक तो फिर क्या होगा? एक बच्चा तो फिर कहाँ कहाँ जाता है आपको पता है, नाना नानी के पास, दादा दादी के पास, पापा मम्मी सबकी गोद में चढ़ना, खेलना, सबको पप्पी देना। अब वो चाहे वायरस की पप्पी हो चाहे कोई सी भी हो, उसको तो पता नहीं। और उसको बचा के रखना, अगर घर में किसी को हो जाए और उसको अब आइसोलेट करें आप, तो बच्चा देखता रहता है कि पापा जी क्यों बंद कर दिया है इसमें, और जैसे ही खुलता है दरवाजा सबसे पहले दौड़ के पहुंचता है वहां पे। खाना देने के लिए दरवाजा खुल रहा है तो इन बच्चों को रोक के रखना, बचा के रखना, इस बानर सेना को, ये बहुत चैलेंजिंग है। तो ये हम लोगों के सबसे बड़े कैरियर हैं छोटे लेकिन कैरियर बहुत बड़े हैं ये। तो ये एक बड़ी चेन फॉर्म कर सकते हैं। आने वाली थर्ड वेव जो इम्पेंडिंग है, जिसके लिए प्रिपरेशंस हो रही हैं, उसमें भी क्योंकि बच्चे बड़ी संख्या में अभी भी प्रभावित हुए हैं, सब लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग जो बच जाएंगे वो थर्ड वेव में वो लोग जाएंगे, उन तक इन्फेक्शन पहुंचेगा। तो होना सबको है लगभग, कुछ लोगों को 2 बार होना है, कुछ लोगों को आपने अगर लगवाया वैक्सीन फिर भी होना है। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि जो परसेंटेज है, जो वैक्सीनेटेड लोग हैं या पहले जिनको हो चुका है उनको दोबारा हुआ है, तो इनमें जो इम्यूनिटी डेवलपमेंट है या जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड है, वो बहुत ज़्यादा सीवियरिटी में प्रोग्रेस नहीं किया है ज़्यादातर मामलों में। कुछ तो देखिए हर जगह आपको मिलेंगे, उस पर हम लोग कम्युनिटी का आकलन नहीं करते हैं कभी। तो कम्युनिटी का आकलन होता है परसेंटेज से कि कितना प्रतिशत लोग कैसी उसमें आ रहे हैं। तो एक फायदा ये है कि वैक्सीनेशन सबसे पहले जब भी मौका मिले आप कराइए, जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन की, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस आपके बीच में होंगे। दूसरा मेरा कहना है कि यदि आप इन्फेक्शन हो गया आपको, आप ठीक हो गए, फिर आप वैक्सीनेशन लगवाना चाहते हैं, कब लगवाएं? तो मैं इसको कहूँगा कि अभी हम लोगों ने गाइडलाइंस चेंज की हैं इसमें, और जल्दी ये मिलेंगी आप लोगों को। उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन हम लोगों ने बनाई है, तो उसमें कितना है गैप? 3 महीने का, क्योंकि WHO कहता है 6 महीने। हम लोग कहते हैं कि भाई 3 से 6 महीने के बीच में आप वैक्सीनेशन करा लीजिए, क्योंकि जो वैक्सीन से जो आपको प्रोटेक्शन मिलना है वो 1 साल का ही मिलेगा। तो इधर जो 3 महीने तक क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज रहेंगी और दोबारा होने के चांसेस नहीं है, बहुत कम चांस है, तो इसको आप इधर इस का यूटिलाइजेशन कर लीजिए और आगे फिर बूस्टर की तरह से वो आप पे काम करेगा। तो अगले साल का जो प्रोटेक्शन है वो आपको थोड़ा और बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से जो गैप है, जो कोवैक्सीन जिन्होंने लगवाया है उनका 4 हफ्ते का गैप है, और जिनने कोविशील्ड लगवाए हैं उनका अब बढ़ गया है ये गैप, 12 से 16 हफ्ते का हो गया है। अब अभी इसकी गाइडलाइन हम लोगों ने चेंज की है। तो ये भी है, तो कितने दिन बाद कराएं और कैसे। दूसरा, जिसको फीवर आ रहा है, जिसको लग रहा है जिसके घर में कोविड फैला है, उसको अभी नहीं कराना है वैक्सीनेशन, उसको इंतजार करना है और 3 महीने तक करना होगा, क्योंकि हम लोगों को पहले ही इम्यूनोजेनेसिटी डेवलप हो जाएगी, उससे तैयार हो जाएगा सब कुछ। तो ये हमारा वैक्सीनेशन का हुआ। अच्छा, कोविड से रिलेटेड जो चैलेंज है और किस तरह से आप पोस्ट कोविड की थोड़ी सी बात और करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर घरों में लोग अब ऐसे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टीप हुआ जो कर्व वो 1 महीने पहले हुआ, और अब लगभग वो ज़्यादातर पोस्ट कोविड की स्थिति में है लोग। पोस्ट कोविड के चैलेंज क्या हैं कि एक तो आप ये मानिए कि सिर से पैर तक, हेड टू टो, ये सबको इन्वॉल्व करता है, ऑल द ऑर्गन्स, क्योंकि सिस्टेमिक रेस्पॉन्स है सबके लिए। जिनका शुगर नहीं बढ़ा था कभी, वो शुगर बढ़ा हुआ मिल जाएगा आपको इसमें जब भी आप टेस्ट करेंगे। कई सारी चीज़ें इसमें आपको अलग से मिलेंगी, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन पूरे बॉडी में है। मानसिक तौर पे लोग डिस्टर्बेंस मिल जाएगा, चिड़चिड़ापन, लोगों में साइकोसिस, कई तरह के इलनेसेस, डिप्रेशन, ये तमाम तरह की बातें भी आपको मिलेंगी। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मिल सकते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो वो मिलते हैं लंग्स के, क्योंकि लंग्स में ही फिर फाइब्रोसिस होने लगती है, जैसे ये ऑर्गेनाइज करता है निमोनिया। इसके बाद अगर हम इसका ट्रीटमेंट ना करें, हम इनको अगर सही समय पर सही डोज में
सही ड्यूरेशन के लिए ट्रीटमेंट जो हमारे पास जो एंटी इंफ्लेमेटरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, अगर वो ना करें तो हम लोगों को ये बड़ा चैलेंज हो सकता है कि फाइब्रोसिस में ये कन्वर्ट हो जाए। तो इसके एंटी फाइब्रोटिक एजेंट्स भी कुछ हम चलाते हैं। और ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, योगा तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मूड स्टेबलाइजर है, पॉजिटिव थॉट्स के लिए है। साथ ही साथ फिर आ जाती हैं हमारी एक्सरसाइजेज। लंग्स की एक्सरसाइज कौन सी होती है? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपके लंग्स को आप मानिए कि पूरा एक कैविटी है और नीचे इसमें पिस्टन की तरह से काम करता है, वो है डायफ्राम। तो डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो नीचे को खींचता है, और जो ये केज है, रिब केज, ये बाहर को खींचता है। तो हमारे नेगेटिव प्रेशर जब जनरेट होता है अंदर चेस्ट में, कैविटी में, तब वो हवा अंदर जाती है। उसी समय ब्लड भी अंदर आता है ज्यादा क्वांटिटी में, जब नेगेटिव प्रेशर अंदर जनरेट होता है, और जब वो पॉजिटिव होता है तो बाहर आती है हवा। इस तरह से हमारा नेगेटिव रेस्पिरेशन है, नेगेटिव प्रेशर। तो अब जो नेगेटिव प्रेशर है और डीप ब्रीदिंग है, अब इसका वॉल्यूम सिकुड़न होने लगती है, क्योंकि ऑर्गेनाइज करता है, फिर ये जो एयर स्पेसेस हैं वो कोलैप्स करने लगते हैं साथ ही साथ, तो ये सिकुड़ता है लंग। और यदि हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया तो वहीं कहीं फाइब्रोस हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे कहीं घाव हो जाता है, फिर वो घाव बढ़ता है, फिर स्कार छोड़ देता है, ये फाइब्रोसिस है जो स्कार है। इसी तरह से स्कारिंग और फाइब्रोसिस से लंग्स परमानेंट सिकुड़ सकते हैं, इसलिए अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क में रहें। साथ ही साथ जो हमारी जो सिकुड़न आ गई है, इसको कैसे हम लोग पूरा दोबारा से एक्सपेंड करें, इसके लिए डीप ब्रीदिंग, खूब सारी सांस खींचना है, रोकना है, या कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, और खूब सारी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इन आउट, ब्रेथ होल्डिंग, ये सारी एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा कार्डियक एक्सरसाइजेज जब आप थोड़ा सस्टेन करने लगें, अगर अभी छुट्टी हुई है आपकी तो अभी जल्दी ना करें, अभी बैठे बैठे ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज को करें। जो ट्रीटमेंट आपको दिया गया है डॉक्टर के द्वारा, जिस अंतराल पर बताया गया है बात करने को, उनसे जरूर बात करें, चाहे ऑनलाइन बात करें, चाहे मिलकर के बात करें। दूसरा, पॉजिटिव रहिए। तीसरा, सबको बचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए जो हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसका अनुपालन कराइए। चौथा, अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है लगातार तो चिंता नहीं करें। 17 दिन, माने 10 दिन में हम लोग छुट्टी कर देते हैं लगभग, जो लोग ठीक हो जाते हैं, तो 10 दिन पे अगर 3 दिन तक ठीक रहा है, 7 दिन से लेकर के, तो हम छुट्टी कर देते हैं। छुट्टी के बाद 1 सप्ताह का और बोलते हैं कि आप आइसोलेशन में रहिए। तो 17 दिन का कट ऑफ अगर हम लोग मान लें तो वहां पे आप ऐसे हो जाते हैं कि अब आपको कोई खतरा नहीं है, आप मूव आउट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन करना है तो आपको मिलने नहीं जाना है कहीं पे भी, ठीक है। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं कि मैंने आपके बीच में रखी, और टाइम का कांस्टेंट है, नहीं तो मैं कई घंटे बात कर सकता हूँ इस पर, जितने आप लोग सुन सकते हो, लेकिन कम समय हम लोगों को मिला है आज इंटरेक्शन के लिए, फिर हम लोग ज़्यादा समय के लिए फिर से बैठ सकते हैं। अब मैं प्रिया जी से या फिर अपने सर जो M.K. अग्रवाल साहब हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो क्वेश्चन आंसर्स ले लें, क्वेश्चन सेशन ले सकते हैं। किसी का कोई सवाल छूट गया हो इसमें जो कवर टेकअप कर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, जिसमें आपने हमें बताया कि कोविड हमारे लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, और हमने दुनिया की गलतियों से सीखा है, और उन्हीं की गलतियों से हमें हमारी गाइडलाइंस मिली हैं। आपने कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की, आपने कहा कि KGMU देश का सबसे बड़ा सेंटर बना है जिसने सबसे ज़्यादा टेस्टिंग की है। आपने लॉकडाउन के प्रॉब्लम्स और माइग्रेंट वर्कर की पीड़ा को भी हमारे साथ साझा किया है। आपने इसे इसलिए चैलेंज बताया है क्योंकि लॉकडाउन और कोविड के जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है। हमें वायरस ट्रांसमिशन को रोकना होगा, हाथ धोना, अपने कान और नाक को बार बार नहीं छूना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, रेस्पिरेटरी हाइजीन का पालन करना, और अगर हम कहीं एक साथ मिल रहे हैं तो कोशिश करें कि वो जगह AC वहां पे ना चल रहा हो, या हम किसी ओपन एरिया में मिलें। आपने वायरल लोड की बात की है, जो हमारा जब फीवर सबसे ऊपर होता है तो वो हमारा वायरल लोड कहलाता है। आपने कोरोना के 3 फेजेस की बात की,
जो हमने जिसको आपने वायरमेनिया इम्यूनो इन्फ्लेमेटरी और थंडो इन्फ्लेमेटरी के नाम से बताया। आपने कहा कि ट्रीटमेंट सबसे पहले होना चाहिए, टेस्टिंग हमें बाद में करनी चाहिए। हमें उनका ज्यादा ध्यान देना होगा जिनका शुगर, ब्लड प्रेशर और अल्सर की प्रॉब्लम्स जिनकी ज्यादा है। आपने प्रेजेंटेटिव कोविड की बात की है और आपने अर्ली और एग्रेसिव ट्रीटमेंट और सेल्फ असेसमेंट के बारे में भी कहा है। आपने बताया कि जब तक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी तब तक हम इस महामारी से निजात नहीं पा सकते हैं। तो हमें इन्फेक्शन को कंट्रोल करना होगा और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करना होगा। थर्ड वेव के बारे में भी आपने बात की कि सबसे ज्यादा जो इसका बड़ा कैरियर है वो हमारे बच्चे हो सकते हैं, तो हमें उनका बहुत ध्यान देना होगा। आपने हमें पोस्ट कोविड केयर के बारे में भी बताया, जिसमें आपने बताया कि हमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, लंग्स की प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम उससे बच सकते हैं योगा करके, एक्सरसाइज करके, कुछ कार्डियक एक्सरसाइज करके, पॉजिटिव रह करके और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगा। थैंक यू सो मच सर फॉर दीज इंफॉर्मेशन। अब मैं हमारे जो को कमेटी मेंबर डॉक्टर मुकेश कुमार श्रीवास्तव से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो क्वेश्चन आंसर सेशन को लीड करें। मुकेश सर प्लीज। थैंक यू प्रिया मैम एंड थैंक यू वेद प्रकाश सर। आपके द्वारा जो दी गई जानकारी है दैट इज रियली very useful for our student, our faculty member and who are listening to this session. वॉल्यूम बढ़ाइए मुकेश जी। कुछ yes sir, I'm audible sir, I'm audible now? Yes, yes, yes. Okay, yes sir. So thank you Priya ma'am and thank you Ved Prakash sir. आपके द्वारा जो दी गई जानकारी है दैट इज़ सो यूज़फुल एंड सो इन्फॉर्मेटिव एंड दैट इज़ रियली अ बूस्टिंग एंड नॉलेज शेयरिंग सेशन फॉर अस। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं इस सेशन में, लेकिन आपने ऑलरेडी उस अपनी सेशन में उन क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोग पूछना चाह रहे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है कि इफ़ समबडी हैज़ क्योर्ड फ्रॉम कोविड और उसको कुछ प्री कंसीव डिसीजेस पहले से हैं तो और वो एक डोज लेना चाहता है वैक्सीन की, तो ही शुड और शी शुड टेक और नॉट, ये पहला क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन एक साथ बोल देता हूँ ताकि आप आंसर आराम से दे लें। और एक जो मेन क्वेश्चन हमारे पास आया है कि अगर किसी को पहले से कोविड वैक्सीन का एक डोज लेने के बाद कोविड हुआ है तो उसके बाद उसको दोनों वैक्सीन के डोजेस लेने हैं और केवल सेकेंड डोज लेना है। सर दीज टू क्वेश्चंस आर मेजर, बाकी सारे क्वेश्चंस के जवाब आपने ज़्यादातर दे दी आई थिंक। हाँ बिल्कुल डॉक्टर मुकेश जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैक्सीन आफ्टर कोविड रिकवरी। इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। जो रिकमेंडेशन अभी हम लोगों ने दी है गवर्नमेंट को, जल्दी रिलीज हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में, उसमें हम लोगों ने कहा है कि जो वैक्सीन उन लोगों को जो कि अभी देखिए कोमॉर्बिड हैं, जो लोग उनके मैंने बताया कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उनको सबसे पहले हम लोगों को वैक्सीनेट करा, सबसे पहला चांस उन्हीं को देना। इसी तरह से हमारी स्ट्रेटजी, इस तरह से पहले आपके जो वर्कर्स हैं जिनको काम करना है, जिनको ड्यूटी करनी है कोविड के साथ में, उन लोगों को टारगेट किया। उसके बाद जो एल्डरली लोग हैं 60 साल से ऊपर, जिनको कि सबसे ज्यादा मौत हो रही है, मौत के आंकड़े में इजाफा उन्हीं से हो रहा है, उनको सबसे पहले लिया। इसके बाद 45 प्लस को लिया, जिनमें प्राथमिकता दी उनको जो कि कोमॉर्बिड थे, कोमॉर्बिड वाले। तो कोमॉर्बिडिटीज को जरूर करना है, वैक्सीनेट करना है, पहले अवसर पर करना है, जल्दी से जल्दी करना है। कब लेना है वैक्सीन आफ्टर रिकवरी, उसको मैं आपको बताना चाह रहा था। मैंने बताया अभी कि 1 वर्ष की इम्यूनिटी इससे हमारी मिलती है लगभग, और इसको हम जितना डिले कर पाए उतना अच्छा है, क्योंकि वो अगले साल में ऐड हो जाएगा। क्योंकि अभी आप ठीक हो करके आए हैं तो 3 महीने तक तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो चलेगी, 3 महीने तक, 3 से 6 महीने चलेगी। तो आप 3 महीने पर अगर आप डोज लगवाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और आपके आने वाले समय में जो इम्यूनिटी का वो जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा इम्यूनोजेनिसिटी का। तो इसलिए लगवाना जरूर है। कोमॉर्बिड को प्राथमिकता पे लगवाना है घर में, सबसे पहले उसी को लेकर के जाइए। यदि आपके घर में 5 लोग हैं और 2 डोज अवेलेबल हैं
लगनी है तो सबसे पहले जो एल्डरली लोग हैं या कोमॉर्बिड लोग हैं, तो आप लगवाइए वैक्सीन। अभी ट्रायल्स भी चल रहे हैं जिनमें 2 से 18 साल के जो स्टेटा है, इन लोगों को ट्रायल चल रहा है, ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। जल्दी ही आपके सामने डाटा आ जाएगा कि कितनी सेफ है ये, तो हम लोग इसको भी आगे बताएंगे कि किस तरह से इस पर स्ट्रेटजी प्लान होगी। ये एक सवाल का जवाब हुआ। दूसरा जो 2 डोज है उसके लिए भी मैं पहले भी बताया था कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड अभी हमारे यहाँ पे चल रही। कोवैक्सीन में जो गैप है वो 4 हफ्ते का ही है पहले से अब तक। कोविशील्ड का जो गैप है उसको बदला गया है। जो अपकमिंग डाटा है उसमें ज्यादा अच्छी इम्यूनोजेनेसिटी है वो गैप के साथ बन रही है। ज्यादा हमारा जो एक फर्स्ट डोज है उसी में अच्छी इम्यूनिटी आ रही है, और इसके गैप जब 3 महीने से 4 महीने का गैप रख रहे हैं हम लोग अगर, तो ज्यादा अच्छी इम्यूनोजेनेसिटी आ रही है। तो ये देखने को मिला है इस अपकमिंग डाटा से, अपकमिंग रिसर्च जो एड ऑन हुई है, और इस पर डिसीजन हुआ है कि हम लोग कोविशील्ड 12 से 16 हफ्ते या 3 से 4 महीने के गैप के बाद लेंगे, और वही गैप हम लोगों ने रिकमेंड किया है अभी रिकवरी के बाद कब आपको पहली डोज लेनी है, वो भी इतना ही। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये बिल्कुल क्लियर है अब। और मैं एक बात और आपसे एड ऑन ये कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन से बड़ी आजादी की छोटी सी कीमत है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। दुश्वारियों को हम लोगों ने झेला है, देखा है, उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि लॉकडाउन से बड़ी आजादी की छोटी सी कीमत है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और ये सबको करना है। ये एक इस तरह से है कि आपको मेरे लिए मास्क पहनना है और मुझे आपके लिए पहनना है। मैं अपने लिए पहन रहा हूँ लेकिन आपके लिए ज्यादा पहन रहा हूँ कि अगर मुझे पॉजिटिव है तो मैं स्प्रेड करूंगा, तो जिसको पॉजिटिव है उसको लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां से ड्रॉपलेट निकलेंगे और फिर वो एनवायरमेंट में आएंगे या सामने आएंगे। तो आपको मेरे लिए पहनना, इसीलिए एक तरह से 136 करोड़ जो देशवासी हैं उनको एक दूसरे के लिए पहनना है, इसके मायने सबको पहनना। एक तो बात मैं ये कहूंगा, और दूसरी मैं ट्रीटमेंट के लिए बात कहूंगा कि स्टेरॉइड्स के लिए डॉक्टर्स की सलाह पे ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए जब आपको जरूरत पड़े, ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आप खोजें, तो उससे पहले आप डोज खिलवा करके जाइए डॉक्टर से बात करके स्टेरॉइड की। इसके लिए मैं कहूंगा कि यदि ऑक्सीजन नहीं है पूरी, स्टेरॉइड है जरूरी। इस बात को याद रखना होगा कि यदि ऑक्सीजन नहीं है पूरी तो स्टेरॉइड है जरूरी। ये स्लोगन हम लोग याद करेंगे। ये मैंने इसको दिया है, मैंने पहले ही बोला है कई जगह। एक सवाल और मैं ये कह सकता हूँ जो न्यूट्रिशन को लेकर के, क्या खाएं क्या न खाएं। विटामिन सी खट्टे में उसमें होती है, खूब सारा ले सकते हैं। विटामिन डी के लिए आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं और धूप ले सकते हैं। हफ्ते में 2 बार आधे आधे घंटे के लिए पूरी बॉडी, तो जितना मैक्सिमम आप बेयर बॉडी रख सकते हैं छत पे या कहीं पे भी जा करके, आगे से और पीछे से दोनों तरफ से लेट करके 15 मिनट आगे से 15 मिनट पीछे से, माने आधा घंटा धूप लेनी है। हफ्ते में 2 बार लेनी है। तो ये D3 के लिए आपके लिए काफी अच्छा एक उपाय हो जाएगा। साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन है उसके लिए मैं कहूंगा कि जो सप्लीमेंट है वो तो है ही, घरों में बहुत सारे हैं, आयुष विभाग से भी कई रिकमेंडेशन हैं। अदरक लहसुन से लेकर के जो हमारे बीच में जो साइट्रस खट्टे फल हैं जिसमें आंवला है, कलौंजी का भी बहुत अच्छा रोल है, शहद का अच्छा रोल आया है निकल करके। तो ये तमाम बातें हैं। हल्दी का सेवन हमारे लोग करते हैं। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि जो 5 रंग है थाली, ये मैं हमेशा कहता हूँ, आप कभी भी सुनते होंगे अगर मुझे, कि 5 रंग अगर आपकी थाली में मौजूद हैं तो लगता है कि सारी बातों की पूर्ति हो जाएगी। अगर मैं ऐसे समझाऊं कि फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट, तो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, उसको कर नहीं पाएंगे। क्योंकि हम ही लोग नहीं कर पाते हैं तो आम जन कैसे करेंगे। 5 रंग अगर थाली में बराबर मात्रा में मौजूद हैं तो सबकी पूर्ति हो जाएगी। गर्म में पेय पदार्थों को ज्यादा लें, कोशिश हो कि या तो टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर पे हो या ज्यादा हो जो आप पी रहे हैं। फ्रिज की ठंडी चीजें नहीं सेवन करें इन दिनों, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें कि ये भी करना है।
एक्सरसाइजेस अगर करनी है तो इंडोर कोशिश करिए करने की। आउटडोर अगर निकलना हो तो बहुत अच्छे से फिट करके मास्क और दूरी पर रह करके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ तभी निकलेंगे। अभी बंदी चल रही है, अभी कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, तो उसका भी अनुपालन पूरी तरह से अच्छे से करना है सभी को। तो हम 136 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी है सूरत को बदलने की। बहुत बड़े देश, बड़ी इकोनॉमी कमर टूट गई है इस लड़ाई को लड़ने में, लेकिन हमारे देश का प्रदर्शन अच्छा रहा है। कुछ कमियां हैं, हम सबकी भी हैं, उन कमियों को ओवरकम करेंगे, मिल करके इसको दूसरी वेव को भी जीतेंगे और तीसरी की तैयारी पहले ही शुरू कर दी। उसके लिए हम लोग तैयार हैं बहुत अच्छी तरीके से। बात और ऐड करनी थी, अब कोई और सवाल हो तो आप बताइए। Sir, thank you. These were only these were the questions. अग्रवाल सर, मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ, आप अगर कुछ कहना चाहें सर, उसके बाद में फिर वोट ऑफ। थैंक यू डॉक्टर मुकेश। हमारे बीच में इस समय हमारे शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर विनीत वर्मा जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कुछ अपने शब्द रखें। डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा लेक्चर दिया है और इतना अच्छे से समझाया है, तो आप कुछ कहना चाहें इस पर। थैंक यू सर, थैंक यू मनोज सर। और मैं प्रोफेसर वेद प्रकाश जी को पहले तो मैं सैल्यूट करता हूं, सभी डॉक्टर्स को, और आपको विशेष रूप से सर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक परिवार की तरफ से कि आपने इस महत्वपूर्ण व्यस्त समय से थोड़ा समय निकाल करके जो लेक्चर दिया, महत्वपूर्ण लेक्चर दिया, कोविड पर लेक्चर दिया, और ये बहुत ही सामायिक विषय है, सभी इस पे लाभान्वित निश्चित रूप से हुए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और मुझे बड़ी खुशी है आपसे रूबरू हो रहे हैं हम लोग, और आप हमारे बीच में आए, हमारे बीच में शामिल हुए, इस पे लेक्चर दिया। एक बार आपको तहे दिल से शिक्षक परिवार की तरफ से, लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरा एक सर सवाल था, उसको मैं पूछना चाहता हूं। जैसा सर आपने कहा कि पोस्ट कोविड बिहेवियर बहुत जरूरी है, जिससे कि ये आगे प्रसार इसका ज्यादा ना हो, इस पे नियंत्रण मिल सके। तो उस पे हम एक आपसे मार्गदर्शन जानकारी ये चाहते हैं सर कि जैसा पिछले फर्स्ट वेव के बाद देखा गया कि स्कूल कॉलेज खोल देने से ये अनियंत्रित हो गया और बहुत तेजी से इसका प्रसार हुआ, तो आपका क्या सुझाव होगा एक एक्सपर्ट के नाते कि अभी हमें जो हमारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बंद हैं, इनको अभी हमें कितने समय के लिए लगभग बंद रखना चाहिए, और एहतियातन जो है हमें एहतियात बरतना चाहिए। हमें बच्चों को, जो हमारे छोटे बच्चे घरों में हैं, उनके स्कूल वाले बहुत लालायित हैं, ऐसा भी बीच बीच में समाचार माध्यमों से पता चलता है कि जल्दी से खुले और पढ़ाई शुरू हो। तो आपका क्या सुझाव है सर कि हमें अभी लगभग कितने समय तक इसको रोक के रखना चाहिए सर? बहुत धन्यवाद वर्मा साहब। तो मुझे तो पता नहीं था, इतने बड़े बड़े लोगों को जोड़ा हुआ है अग्रवाल साहब ने, उनकी टीम ने, तो बहुत अच्छा है कि इतने सीनियर फैकल्टी यहाँ पे हैं, जुड़े हुए हैं। और मुझे आप सर मत बोलिए, मैं आप ही के बीच का हूँ, आपके परिवार का हूँ, बहुत छोटा एक इस लखनऊ यूनिवर्सिटी परिवार का, वहीं से हम लोग पढ़े हैं। अभी भी हम लोग यही मानते हैं कि हम लोग वहीं के, क्योंकि जो मदर यूनिवर्सिटी आप कहेंगे तो एलयू है, और हम लोग वहीं का हिस्सा है। और बहुत इम्पोर्टेंट आपने कहा कि किस तरह से ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बैकबोन की तरह से है इस पैंडेमिक से लड़ने, इस प्रकार से ये वैक्सीन की तरह भी है। हम लोग वैक्सीन भी कहा, तो हम लोगों ने प्रोटेक्शन के लिए हमारे आर्मेनियम भी कहा कि हम लोगों का ये पूरा हथियार है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इसमें हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और लोगों से मिलना नहीं, ये हम लोगों का अनुपालन करना है। छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी बातों से हम लोग एक बड़ी महामारी को मात दे सकते हैं।
ये इम्पोर्टेंट है कि यदि हम लोग लॉकडाउन से बचना चाहते हैं, यदि हम लोग अपनी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं नॉर्मल ज़िंदगी के लिए, सब लोग परेशान हैं। बल्कि पिछली बार लॉकडाउन में ज़्यादा परेशान हो गए थे, इस बार तो इतना नहीं हुआ है। लेकिन दुःख है, किसी न किसी को खोया है हमने अब। दुःख इस बात का भी है कि हमने घर में नहीं खोया है तो रिश्तेदारी में, नातेदारी में खोया है। किसी ने न किसी ने अपनों को खोया है। तो ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन ऐसी हम लोग फेस कर रहे हैं कि अभी हमने भी 6 महीने पहले मदर इन लॉ को खोया है और अभी 15-20 दिन पहले ही हमारे फादर इन लॉ नहीं रहे। तो हम लोग कोई अछूता नहीं कि कहीं न कहीं से दुःख की खबर आती है। जब भी आपका फ़ोन बजता है हमारा, तो हमें लगता है कि कहीं कोई ऐसी घटना तो नहीं हो गई। हर वक़्त ग्रुप्स पे ये मैसेज पढ़ने को मिल रहा है। लगातार जितना श्रद्धांजलि इस समय हम लोगों ने दी होगी या हम लोगों ने दुःख जताया होगा, शायद इतनी जल्दी-जल्दी कभी ऐसा मौका नहीं आया होगा, हर ग्रुप पे, हर उसमें। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको फेस किया है, जो कि बहुत दुखद स्थिति है हम लोगों ने। और जहाँ तक नई चेन फॉर्मेशन का सवाल है, मैंने कहा कि जो हमारे नौजवान, जो हमारे वर्किंग लोग, जो घर के लिए काम करते हैं, कमा कर के लाते हैं बाहर, उनकी ज़िम्मेदारी है कि बाकी लोगों को आइसोलेट रखना। जिसमें बच्चे हैं, जिसमें महिलाएँ हैं, जिसमें हमारे बुजुर्ग हैं या कोमॉर्बिड कंडीशन के लोग, अब सबको आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे वर्किंग लोग जो बाहर जा रहे हैं, ये अपने आप को आइसोलेट करें। एक कदम आगे बढ़ा करके परिवार की सपोर्ट में, समाज की सपोर्ट में खड़े हों और अपने आप को पॉजिटिव मानें कि हम पॉजिटिव हैं। और इसी तरह का आचरण घर में हो। एक बाहर वाला कमरा आप अपना ले लीजिए, उसी में सारे कपड़े उतार दिए, वहीं नहा लिए, इसके बाद ही मास्क लगा के बढ़िया से पूरी तरह से तब जाकर के दूर से मिलिए घर वालों। ये मानिए कि आप पॉजिटिव हैं। तब हो सकता है कि आप कामयाब हो जाएं कि परिवार में ले जाने से। नहीं तो ये जो अभी का जो वायरस है, ये म्यूटेंट इतना इस तरह इतना खतरनाक है कि अगर एक को हो गया तो घर में सबको होना ही होना। ये सिम्टम आए ना आए, लेकिन हो सब जाते हैं। ये मैंने देखा है हर घर में। हमारे में भी हुआ तो हमारे में भी नहीं ऐसा हो पाया कि रुक पाया हो। लेकिन हाँ, ये है कि इलाज अगर सही समय पे सही तरीके से हो सकता है तो ये पूरी तरह से 100% जान बच सकती है। हमसे गलती होती है, या तो हमें देर से पता चलता है आइडेंटिफिकेशन कि प्रोग्रेस कर गया। जब हमारा ऑक्सीजन स्तर गिरने लगता है तो आप समझ लीजिए कि लगभग आधे लंग्स आपके इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, बहुत देर हो चुकी होती है। ऑक्सीजन गिरने का इंतजार ना करें, 6 मिनट वॉक टेस्ट करें, जिससे कि आप पहले ही पकड़ सकें कि कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं हो रही हमारी कैपेसिटी। सांस अगर हल्की फूलने लगी तो करें। लेकिन अगर 6 मिनट वॉक टेस्ट पे अगर आप जाएंगे रेगुलरली, तो मुझे लगता है कि और पहले पकड़ पाएंगे स्ट्रेस उसको। तो हमें पहले पकड़ना है। तो हमें इस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन भी करना है, सबसे कराना भी है, और अब इसको जिंदगी का हिस्सा भी बना करके रखना। ये तो बहुत बदला है इस कोरोना ने। कोविड, पोस्ट कोविड जो दुनिया होगी बिल्कुल अलग है। कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि शायद जो हमारे सगे लोग हैं, उनकी अंत्येष्टि में भी हम लोग नहीं जाए। कभी शायद नहीं सोचा होगा कि हम लोग को इसमें भी परेशानियों का सामना करना पड़े, कि इतने लोग अंत्येष्टि, अंतिम यात्रा। हम लोग कहा करते थे, पहले सुना करते थे कि ये जो कमाई है वो वहीं पता चलती है कि कितने लोग पीछे हैं जब आपकी अर्थी जा रही होती है। लेकिन कोई बदल दिया कोरोना। इसलिए मैं कहूँगा कि जितने भी हमारे चैलेंजेस हैं इस समय के, उसमें सबको कंट्रीब्यूट करना होगा। मिलजुल करके हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे। सबकी भूमिका है। सभी ने जिस तरह से पहली वेव में अच्छा काम किया, प्रदर्शन किया, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह से उसको निभाया है, उसी तरह से सेकेंड वेव को भी हमें लड़ना है। उसको लड़ रहे हैं हम लोग। तो विनीत वर्मा साहब, आप हैं इसमें जुड़े हुए हैं, मुझे तो पता नहीं था आप भी यहाँ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुना है, मुझे सुनने के लिए आपने समय निकाला है। और सीनियर फैकल्टी कलीग जितने हों उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे सुना इतनी देर।
और जो स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं कहूँगा कि वो सबसे ज़्यादा अगर किसी पे इसकी जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी है नौजवान, जिम्मेदारी है इन्हीं लोगों पे। अब स्कूल जाने के लिए जो डिसीजन है वो डिसीजन गवर्नमेंट लेवल पर होगा। कई सारे एजेंसीज इस पर लगातार काम कर रही हैं। किस तरह से हम इसकी रोकथाम को कर पाने में सक्षम हो पाएंगे, कौन से मॉडल ईजाद करने होंगे। अभी ऑनलाइन टीचिंग का मॉड्यूल्स आपके यहाँ पे भी ईजाद हुए हैं, काफ़ी अच्छा उसका उपयोग हो रहा है। घर घर में सबके पास अब स्मार्टफोन है, तो ये चीज़ें आसान हो गई हैं थोड़ा। तो सब जो लेक्चर्स हैं, जो हमारी पढ़ाई है अभी इसी पे चल रही है। कब तक ये होगा ये कहना अभी थोड़ा सा, क्योंकि मैं एक मुझे गवर्नमेंट में एक सलाहकार की भूमिका में भी रहना होता है, इसलिए मैं कुछ डिस्क्लोज करूंगा तो वो शायद अच्छा नहीं होगा, अप्रोप्रिएट नहीं होगा। वो अगर गवर्नमेंट की तरफ से ही आएगा तो अच्छा होगा। लेकिन मैं बस यही कह सकता हूँ कि जो हमारी जो चेन है, जो आगे संभावित चेन जो बनेगी, और उन लोगों नहीं आए इन्फेक्शन, या फिर म्यूटेंट वायरस अगर कोई इस तरह का आया, नेक्स्ट म्यूटेंट जो उससे प्रभावित करेगा, तो वो नई चेन बनाना। इसी तरह से हम लोग लड़ेंगे, इस चेन को तोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। नहीं, और बहुत अच्छा रहा, हम लोगों का मन भी बहुत सुनने को है, जरूर हम लोग दोबारा सुनेंगे। और अभी इसके बाद मैं आपसे बात भी करूंगा इस क्लोज होने के बाद। मैं एक चीज सभी अपने पार्टिसिपेंट से कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन मोड में हम कुछ और तो नहीं कर सकते, हम लोग अपने को अनम्यूट करके हम लोग 1 मिनट क्लैपिंग करके डॉक्टर साहब का जो है आभार व्यक्त कर सकते हैं। सभी लोग म्यूट कर लें और एक के साथ म्यूट कर लें अपने को। Thank you so much, sir. एक चीज मैं डॉक्टर शेयर करना चाहूंगा अपने IMS की, कि हमारे यहाँ 2 बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम स्टूडेंट्स ने बनाई है, and they are helping the COVID patients all possible manner. I will be sharing the video with you. And now I request Dr. Mukesh for a vote of thanks. I deem it a great honor and privilege to propose a vote of thanks for today's informative lecture session. Let me first of all start by giving glory to Almighty God for keeping us hale and hearty in these tough times. First and foremost, I thank you, our special guest, Professor Dr. Ved Prakash, Head of Department Pulmonary and Critical Care Medicine Department, King George Medical University, Lucknow, who despite his busy and tough schedule has found time to grace this occasion and his suggestions and post-care methods to enlighten us. I thank our guardian, our mentor, our OSD sir, Professor M.K. Agrawal sir, for making for his continuous support, vision and commitment for our institute and for the faculty members. I thank you sir for having faith in us. I thank all the distinguished faculty members who are present over here, the invitees and my dear students who are present here and on other live platforms like YouTube and Facebook, for accepting our invitation and becoming a part of this fruitful special lecture session. Last but not the least, I thank my team members Dr. Priya, Dr. Vinny, Dr. Nimisha for their cooperation for making this session a work. Finally, I just want to end my words with these words: Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya. Once again, I thank you all for attention. Thank you. With these words, sir, we want your permission to end this session. Okay, thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. That was done now. थैंक यू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अभी थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम वेलकम। और सभी लोग
जितने लोग जुड़े हैं आप मेरी तरफ से भी कह दीजिए, किसी को कोई दिक्कत हो, किसी के घर में कोई दिक्कत हो, आप जी। थोड़ा एडवांस में बता दीजिए, भर्ती नहीं होने देंगे। थैंक यू फॉर दीज काइंड वर्ड्स। थैंक आप यू डॉक्टर। पहले बताइए, मैं समय पे आपको मैं फोन पे इलाज कर दूंगा, बहुत लोगों का किया है। थैंक यू।